Good morning, class 9 students. This is your biology teacher, Agrima Rawat, and in today's video, we are going to continue the chapter number 5, that was the fundamental unit of life. Okay, previously we have done 2 videos on it, in which we have covered the introduction of the cell, discovery of the cell, shape and size of the cell. Then we have continued with the components of cell. In which we have covered the first component, that was the plasma membrane. Plasma membrane, what is plasma membrane? Yes, that is very good. So the plasma membrane is the outer covering that is present outside every living cell. Okay, so every cell is going to constitute composed of a plasma membrane that is going to protect it from the outer environment, that is going to separate the external environment from the components of the cell. Okay, so it is a flexible membrane outside this every cell. Okay, so now it is also called a semi-permeable membrane just because of the characteristic of it, that it allows only a few elements to come inside the cell and only a few elements can go outside of the cell. So right, the plasma membrane is called as border security force. It also act as a border security force, right, that allows only a few people to come inside and allow only a few to go outside. They are going to check on it. That was a function of plasma membrane. Now we are going to continue with the next component. So our next component is the cell wall. So here you can see the cell wall. Okay, this one. Can you see this? Okay. So what is cell wall? Cell की wall. ठीक है, cell की ये wall है. Now why it is called a cell wall? I have told you earlier that plasma membrane is found in every cell. So the inner layer, there you can see here, it is one layer and this is the second layer. So the inner layer is called as plasma membrane, the inside layer. Okay, in the plant cell only. We are talking about the plant cell only. So the inside the cell, inside layer membrane is called as plasma membrane, and the outer membrane is called as cell wall. Now it is called as wall. You all know wall means diwar, right? So it is hard enough that protect our house, right? We have a wall around our house that is protecting us. So same as it is, the cell wall is. It is a rigid outer covering. And we have talked about the plasma membrane, that it was a flexible outer covering. Okay, it is very flexible. It is like a balloon that can change its shape. But the cell wall is not like that. It stays in a particular shape. It provides a shape to the plant cell. Okay, so plasma membrane is inside in the plant cell, and outside it the cell wall is present. Okay, and one thing more, that not only in plant cell the cell wall is found, in few bacteria and fungi also it is found. Okay, in the plant cell, when we are talking about the cell wall is made up of cellulose. Cellulose is a polysaccharide. Polysaccharide means you have heard about the carbohydrate, right, that we eat, that is our nutrient. So it is something like that. We'll talk about it later on. It is a type of carbohydrate. Okay, and the bacteria and fungi that they are having cell wall, that is a different type of, because it is made up of protein and non-cellulosic carbohydrate. It is a carbohydrate, but it is not cellulose in plant fungi and bacteria. Are you getting my point? So here you can see in the plant cell the plasma membrane is here, and outer layer is called as cell wall. Okay, it is more rigid, it is flexible, so it is not providing a particular shape to the plant, but the cell wall, it is providing a shape to the plant. So you would have seen the plant, that it is a very rigid structure. It doesn't change its shape like that. If you will you will just press the stem of the plant, is it going to change its shape according to your will?
वी विल प्रोवाइड अ वेरी लार्ज फोर्स. अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली वो टूट जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा. बट एकदम से आप दबाओगे तो ऐसे करके बैलून की तरह पिचकेगा नहीं, राइट. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल दैट इज प्रेजेंट in every plant cell. Okay, that together they are providing a rigid structure to the plant. Okay, and here you can see the animal cell. In animal cell, this is the plasma membrane and it is the outermost layer. Outside it no cell wall is present. Okay, so in the normal animal cell, like human, in our body the cell is constituting only of the plasma membrane. It is not having any cell wall. Okay, so this is the main difference between plasma membrane and cell membrane. Okay, now what is the function of the cell wall? Okay, so the function of cell wall, what it is functioning, why when the plasma membrane was present there, why the cell wall is now there? कि प्लांट सेल में जैसे एनिमल सेल में सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, तो प्लांट सेल में भी एक सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से काम चल जाता है आपका. वाई द सेल वॉल इज देयर नाउ? सो सेल वॉल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? दैट इन अ वेरी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स, या इन्वायरमेंट मतलब जो इसमें बाहर आपका सॉल्वेंट जो है बहुत ज़्यादा है. सॉल्वेंट मतलब वाटर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, बाहर का इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है तो कहाँ की साइड मूवमेंट स्टार्ट होगा? वेरी गुड, याद करो याद करो. यस, तो सेल के अंदर जाना, वो जो एक्स्ट्रा पानी बाहर है वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, अब सेल के अंदर जाते जाएगा जाते जाएगा. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऐसी है जो फ्लेक्सिबल है, तो वो फूलती जाएगी. जैसे एक बैलून में आप पानी भरते जाओगे तो वो फूलती जाएगी. बट फिर क्या होगा, क्योंकि बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है सेल के, तो वो सेल जब आपका सेल वॉल का जो है स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल आ गई. जब आपका बैलून के बाहर मतलब मान लो आपने एक दीवार खड़ी कर दी, बैलून में पानी भरे जा रहे हो, बट क्या होगा कि जैसे ही एक दीवार आ गई उसके आगे उसकी लिमिट ही नहीं है, वो फूल ही नहीं सकता बैलून, तो फटेगा नहीं. अगर वो दीवार नहीं होती और इसमें पानी भरते जाते, तुम बैलून में भरते जाते और वो फूलता ही जाता और एक टाइम ऐसा आता कि उसमें पानी इतना ज़्यादा हो जाता कि वो फट जाता, राइट. बट सेल वॉल होने की वजह से, प्लांट्स में सेल वॉल होने की वजह से अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी आ जाए तभी भी वो फटेंगे नहीं, बर्स्ट नहीं होंगे. Are you getting my point? That is the function of cell wall in the plants, fungi, bacteria. Okay, they can withstand मतलब सहन कर सकते हैं. Very dilute or you can say hypotonic external medium. Okay, hypotonic medium means in which the solute is less and solvent is more. Very good. Okay, second function, as I have told you, it determines the cell shape of the plant. सेल की जो शेप, आपकी जो प्लांट की शेप है वो इस सेल वॉल की वजह से होती है. ओके, एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्राइंग अप ऑफ द सेल बिकॉज देयर इज अ सेल वॉल आउटसाइड द plant cell, so it will not let every little amount of water to go out of the cell. It will let few of the particles of the water to be inside the cell only. Okay, it is not going to dry, let the cell dry or desiccation मतलब drying. Okay, सूखने नहीं देगा सेल को बहुत, बिल्कुल ही एकदम से. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा जितना भी पानी बचा सकते उतना बचा ले. ओके, नेक्स्ट इज इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. कि ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो तभी करने देगा क्योंकि बाहर एक पहले से एक और दीवार आ गई सेल वॉल की. ओके, तो सेल वॉल को पहले कुछ चीज़ों को अंदर आने देना पड़ेगा, तभी जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें एंट्री देने की सोचेगा या नहीं सोचेगा. तो सेल वॉल भी इस ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है. ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द सेल वॉल इज प्रोटेक्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंटरनल जो अंदर और चीज़ें सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हैं, सबको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल. ओके, सो दिस इज द होल फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. ओके, नाउ देयर इज वन थिंग
plasmolysis. Okay, plasmolysis, this term, we should be understanding this whole process by this term only. Plasmo word is in the consideration of the cytoplasm, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म. प्लाज्मा आपका टर्म मैंने आपको साइटोप्लाज्म वगैरह आपने 8th क्लास में पढ़ा है, दैट द लिक्विड कंटेंट, राइट, दैट इज अ प्लाज्मा, द ग्राउंड सब्सटेंस. एंड लाइसिस मतलब टूटना. ओके, सो the lysis of the plasma. So what is going to happen in this? They just see it. There is a cell over here. You can see it, and it is a plant cell. As you can see, the cell wall is here. Okay, so this is a plant cell. This is the nucleus. Okay, other organelles are present, and this whole white thing is the vacuole. बताया था that the plant cell is having a large vacuole inside it. Oh, this is the vacuole. Okay, now what is there? In the outside, in the external environment of this cell, the hypertonic solution is there. Hypertonic means the solvent is less, means water is less in amount and solute is higher in amount in this. Okay, now the solvent, as the solvented outside is less, so the movement of water will happen from inside to outside. Okay, so the water will move from inside the cell to the outside environment. Now just see it. When the balloon, like, let us take an example of balloon. This is a balloon inside. Okay, it is losing its water. Now its shape is going to reduce, so it is reducing in shape, right? And slowly when the water will keep moving outside, it balances out, because this solution is having a very less amount of solvent outside, right? So now very large amount of water have gone outside. This whole cell have leave the cell wall. It has shrinked. It has shrink that much that it has leave the cell wall structure. Okay, so this whole process is called as plasmolysis. Okay, so the plasmolysis is defined as the process of contraction और shrinkage. Contraction का मतलब होता है सिकुड़ना, इकट्ठा होना. Okay, shrink हो जाना. Shrinkage of protoplasm. Now we will understand what protoplasm is. Shrinkage of protoplasm of the plant cell, and it is caused due to the loss of water in the cell. Loss of water has happened. Okay, and it is an outcome of osmosis. Obviously, osmosis have came across in this exoosmosis has happened, right? Okay, just one term is not clear here: protoplasm. Now, what protoplasm is? Just in a clear language, whatever inside the plasma membrane is there. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें वो सब प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, everything inside the plasma membrane, that is the protoplasm, or we call it as the colorless material comprising the living part of the cell, including cytoplasm, nucleus and other organelles. Okay, are you getting my point? प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो भी अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्म में आती हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे अब पूछूं साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, अभी हम साइटोप्लाज्म के बारे में अभी पढ़ेंगे तो आप अभी पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे. 8th में तो आपने पढ़ी रखा है, बट नाउ यू विल गेट क्लियर अबाउट इट. तो प्रोटोप्लाज्म समझ लिया आपने, दैट एवरीथिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, राइट, protoplasm. Okay, so this whole process was plasmolysis. प्लाज्मो का लाइसिस हो गया, प्लाज्मा का लाइसिस हो गया. यहाँ पे बिल्कुल ही सिकुड़ गई है, प्लाज्मा तो निकल गया आधे से ज़्यादा. Okay, because the plasma, cytoplasm, or you can say protoplasm, is consisting of a large amount of water. The water has loosed, so now this shape it's also have loosed. Okay, this was a plasmolysis.
Now coming to the next organelle, next component of the cell, that is very important, because without the brain of in the human body, our body would have been nothing. अगर हमारी बॉडी में ब्रेन नहीं होता सो हमारी बॉडी में मतलब आप कह सकते हो कि कुछ भी नहीं है. So same as it is in the cell, the nucleus is very important because the nucleus is the brain of the cell. Okay, so this is the brain of our cell. So why it is called as brain? Because brain regulate everything in our body. Everything. If we are moving our hand, that is because of our brain. So same as it is in the cell, every function is regulated by the nucleus. हर जो भी आपका काम होना है, किसी सेल के अंदर कुछ भी काम होना है, दैट इज गोइंग टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन related to the functioning of your body. Okay, it is the largest organelle in your body. सबसे पहले आपकी body में नहीं, in the cell the largest organelle is the nucleus, and it carry all the hereditary information of the cell. Hereditary means heredity. In 8th class you would have learned about it. Heredity, that information that comes from your parents से आप में आई, वो information क्या है? हेरिडिटी है आपकी, जो आपको विरासत में मिली है. ओके, लाइक सम ऑफ द पीपल से दैट आपकी शक्ल आपकी मम्मी की तरह लगती है, तो दैट्स मीन आई हैव गॉट दैट करेक्टर फ्रॉम माई मदर, दैट हैज बीन इनहेरिटेड, right? That was a hereditary information that came from my mother to my body. Okay, so this is the hereditary information. Now the hereditary information, it is concentrating in the nucleus. It regulates all the cellular activities. Cellular activities means cells की activity. It regulates everything. I have told about it to you. It is an autonomous organelle of the eukaryotic cell. अब eukaryotic cell का क्या मतलब है अभी हम पढ़ेंगे. जो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, बिल्कुल डेवलप्ड सेल्स हैं, उनकी बॉडी में जो सब अपने आप से जो अपने सारे काम कर सकता है, उस ऑर्गेनल को हम ऑटोनॉमस बोलते हैं. ऑटो मतलब खुद से, ठीक है. ऑटोनॉमस ऑर्गेनल का क्या है मतलब कि जो अपना काम सारा खुद से कर सकता है, उसको कोई और कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जब न्यूक्लियस सबको कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब वो भी खुद को भी अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. And nucleus was discovered by Robert Brown. Okay, the cell was discovered by Robert Hooke, and the nucleus was discovered by Robert Brown. Are you clear? Okay, now let us move to the structure of the nucleus. Can you see it here? Okay, so this is the structure of the nucleus. This is not a cell, just don't understand it as a cell. Okay, this is a nucleus. Okay, so just understand it is a cell, and inside it ये एक सेल है रेड जो आपको शो किया, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. हाँ, सो दिस न्यूक्लियस सेम इसको भी आपको सेल के बाहर, जो सेल में जो बाहर चीज़ें हैं, न्यूक्लियस के हेरिडिटरी मटेरियल को आपको अलग रखना पड़ता है. सो दिस मेम्ब्रेन दैट इज सेपरेटिंग द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप. दिस यू कैन सी, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप. ओके, so that is enveloping the nucleus. Okay, now one thing more, see it here, there are minute pores in this nuclear pore. You can see this is a pore, ये टूटी हुई है. आपकी जो न्यूक्लियर एनवेलप है पूरी तरह से डेवलप नहीं है. ओके, इन बिटवीन इट इज हैविंग सम पॉइंट्स ओवर है जिससे आपका गैपिंग है. दैट गैप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर.
nuclear pore, because pore is very much needed for the transportation. Okay, so the nuclear pore is here. Then जैसे सेल में आपका साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहा होगा आपका, है ना, ये साइटोप्लाज्म जो लिक्विड आपका सेल में प्रेजेंट है, वैसे ही न्यूक्लियस का मटेरियल भी किसी लिक्विड के ऊपर है, किसी ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर है. दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. What it is called? Nucleoplasm. Cytoplasm was the cell plasma. Nucleoplasm is the nucleus plasma. Nucleus का plasma है ये. Okay? Okay. Now nucleus. Inside the nucleus there is an organelle that is called as nucleolus. Just be clear on it. Nucleus के अंदर क्या है? Nucleolus. ठीक है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर है. कैन यू सी इट? ओके, सो न्यूक्लियस इट इज द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. इस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं. राइबोसोम्स का काम आगे चल के हम वैसे पढ़ने वाले हैं, बट एक ब्रीफ में बता देती हूँ दैट राइबोसोम जो है प्रोटीन्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो राइबोसोम कहाँ से बनेंगे? यहाँ से न्यूक्लियस में बनेंगे. सो द nucleus is also called as factory of ribosome, where the ribosomes are manufactured. Okay, now we have been talking about that nucleus is having the hereditary material. Hereditary material means that material that is the information that is going to control all the cellular activities. So this thread like structure, these, can you see it here? This is the hereditary material. And this at this stage when it looks like this thread, जब अभी ये थ्रेड की तरह ऐसा दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे थ्रेड एक दूसरे से घूमे पड़े हैं, इस स्टेज पे इसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं. जेनेटिक मटेरियल को जब ये थ्रेड की स्टेज में है तब उसे क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन. जस्ट रिमेम्बर इट केयरफुली. आई हैव यू गॉट इट? सो दिस इज द क्रोमेटिन. ओके, अच्छा, यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रखा है, तो देख सकते हैं आप न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. ये आपको स्ट्रक्चर में अभी पढ़ना नहीं है, ये अभी आप आगे चल के समझ जाएंगे, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये राइबोसोम्स बने कहाँ? न्यूक्लियोलस के अंदर. ठीक है, यहाँ पे बने और फिर वो बाहर आए न्यूक्लियर पोर के अकॉर्डिंग से. ओके, समझ आ गई होगी इतनी बार स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ओके, now when we have been talking about the chromatin, तो क्रोमेटिन मैंने आपको बताया जब तक आपका थ्रेड जैसा वो घुमा फिरा था ऐसा इस तरह का, तब तक तो आप उसे क्रोमेटिन बोल रहे हैं. बट प्रायर टू द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस को डिवाइड होना होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी तो इन्फॉर्मेशन जाएगी. अब पेरेंट्स से हमारे तक कैसे आई इन्फॉर्मेशन? उनके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, इन्फॉर्मेशन आधी आधी बटी, तब जाके हमारे अंदर आई. तो जिस टाइम पे डिवीजन होना था उससे पहले ये क्रोमेटिन जो धागे जैसा दिख रहा था, ठीक है, जो धागे जैसे दिखाई दे रहा था, ये हमें जैसे अभी धागे जैसे दिख रहा है, ये हमें ऐसा दिखने लग गया. इसे बोलेंगे क्रोमोसोम. ठीक है, अब क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है. ये रहा डीएनए, ये डीएनए जो आपको डबल स्ट्रैंड ऐसे दिखाई दे रहा है, जो धागे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं. दिस इज द डीएनए होल, एंड अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज जीन. बोलते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर जीन्स आए हैं, तो वो जीन्स, ठीक है, ये जीन्स हैं. ओके, सो the gene is constituting the DNA and the DNA is constituting the chromosome and chromosome is going to form the chromatin. Okay, so chromatin ये धागे जैसे बिल्कुल एकदम से लिपटे हुए हैं एक दूसरे से. फिर जब डिवीजन होता है उससे पहले वो कुछ इस तरह की शेप में अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर हम इसे ऐसे समझें, हाँ, तो जो क्रोमोसोम्स हैं इट इज़ कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए और प्रोटीन से बनता है. ठीक है, प्रोटीन तो हर चीज़ का एक बेस है, बिल्डिंग
बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जो आपका बॉडी को बिल्ड करेगा, जैसे ईंटें सीमेंट्स वगैरह घर को बनाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपकी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होगी। प्रोटीन तो आपकी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होगा। और डीएनए इसके साथ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। डीएनए की फुल फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एन एसिड। ओके, दिस इज डीएनए। तो डीएनए स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन। जो भी काम करना है सेल को, वो सब कुछ डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है। एंड इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी मटेरियल। अगर आपसे कोई पूछे हेरिडिटरी मटेरियल क्या है प्रॉपर, दैट इज द डीएनए। एंड डीएनए, इन द डीएनए द फंक्शन सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज जीन। ओके, क्लियर? Okay, now moving to the next thing, we are going to talk about the chromosome structure. Just few time backs we have been talking about the how the chromatin, this is a chromatin, this is thread like structure, this is like this, ऐसे ऐसे करके thread like structure थे, right? अब जिस टाइम पे डिवीजन होगा वो कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे, एक ऐसे स्ट्रैंड बन गया, इसके बीच में दिख रहा है ये दो आर्म्स हैं, एक ये आर्म है एक ये आर्म है, ठीक है, ये दो आर्म्स हैं। नाउ दिस आर्म हैज अ पर्टिकुलर, दीज टू आर्म्स हैव बीन joined by this center. Okay, this center is called as centromere. क्या बोलेंगे? Centromere. Okay, can you see it? Okay, centromere. This is the centromere. Centromere center है ये दो आर्म्स के, क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स के जॉइंट जो कर रहा है उसे सेंट्रोमियर बोल रहा है, सेंटर है क्योंकि, ठीक है। अब जिस टाइम पे न्यूक्लियस का डिवीजन होना है, अब मेरे पास मेरी बॉडी में एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब 46 के 46 क्रोमोसोम आगे भेज दिए तो 46 क्रोमोसोम हमारे फीमेल के मिलेंगे और 46 क्रोमोसोम आपके मेल के कंबाइन होंगे, तो कितने बन जाएंगे? 92, राइट। ये तो डबल हो गए, ह्यूमन नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। तो आधे आधे करने जरूरी है, पर आधे आधे करेंगे कैसे? इन्फॉर्मेशन को पहले इसको आगे भेजने के लिए इसी इन्फॉर्मेशन को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। डुप्लीकेट कैसे करेंगे? इसने अपने जैसा एक और बना लिया, दिख रहे, इसका एक था ये हाथ, अभी एक और बन गया, ये सेंट्रोमियर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में इंफॉर्मेशन क्या है? सेम है। इस वाले में और इस वाले में इंफॉर्मेशन क्या है? बिल्कुल सेम। अगर इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि आंखें ब्राउन होंगी, तो इस वाले में भी क्या इंफॉर्मेशन होगी? आंखें ब्राउन होंगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है तो इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब ये एक जो आर्म है इसे बोलेंगे क्रोमेटिड, और ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं इनमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक जैसी है, तो इसे क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये वाला जो, 1 मिनट, ओके, एक आपका ये वाला क्रोमेटिड और ये दूसरा वाला आपका ऑरेंज ब्राउन कलर का दिख रहा है, एक ये वाला क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इन दोनों में इंफॉर्मेशन अलग अलग है। ओके, तो इन्हें नॉन सिस्टर बोलते हैं। तो सिस्टर सिर्फ ये वाली हैं जो एक ही से बनी है, ठीक है। येलो येलो वाली एक दूसरे के साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स है, क्यों? क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन सेम है, बहनें हैं ये, ठीक है, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। ओके, क्लियर? Okay, now moving to the next thing. Everybody know it that in a human being 46 chromosomes are there, या फिर हम उसे बोल सकते हैं 23 पेयर्स, क्योंकि जोड़े में होते हैं ये क्रोमोसोम्स हमेशा, ओके, पेयर्स में होते हैं, तो 23 पेयर्स। नाउ क्रोमोसोम्स इन द 46 क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम्स तो हमारे ये डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे अंदर आंखें कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, हमारी बॉडी के और फंक्शन जो है उन सब चीज़ों को जो बताएंगे
वो आपके 44 क्रोमोसोम्स हैं। उन 44 क्रोमोसोम्स को जो सिर्फ ये बताते हैं, ये सारे और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक है। और दो क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि हम फीमेल होंगे या मेल होंगे। जो भी नया बेबी बन रहा है, फीटस बन रहा है, उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, वो ये 2 क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। ठीक है। सो इन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो 44 और 2 बना के कितने हुए? 46। ओके। अब अगर क्रोमोसोम्स जो है पेयर में है, ये पेयर में है, ठीक है, तो इसे डिप्लॉयड बोलेंगे, मतलब पेयर। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मतलब 23 पेयर्स हैं। ठीक है, तब तो ये डिप्लॉयड है। अगर इसको मैंने आधा कर दिया, एक ही आया, ठीक है, ये एक थ्रेड आया, ठीक है, एक ही थ्रेड आया, तो इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिर्फ आधे आए हैं, 23 ही आए हैं, 23 पेयर्स नहीं आए, 23 आए हैं, सिर्फ आधे आए हैं क्रोमोसोम, अनपेयर्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कैसे याद रख सकते हो? हाफ, आधे। और डिप्लॉयड कैसे याद रख सकते हो? डबल। ठीक है, डी से डबल। ओके, ये डबल है और ये आधे हैं। ओके, क्लियर अबाउट इट? सो दीज वर द नंबर ऑफ chromosomes. Now, what is the function of nucleus? अब इतना सारा हमने वैसे पढ़ ही लिया, समझ तो आ ही गया होगा, तो देख लेते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी तो आगे तक जाएगा, तो वो आपका न्यूक्लियस से ही सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो इन्फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन तो तभी सक्सेसफुल होगा जब इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो न्यूक्लियस सबसे इम्पोर्टेंट काम प्ले कर रहा है। सेल साइकिल, जो कि सेल फॉर्मेशन, अब मेरे को चोट लग गई कहीं पे और मेरी सेल्स टूट गई हैं, खराब हुई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो नई सेल बननी होगी। वो सेल, नई सेल बनेगी कैसे? जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। वो इन्फॉर्मेशन, हु विल प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन? न्यूक्लियस। Okay, so nucleus is going to regulate the cell cycle, that is cell formation also and cell division also. We have talked about it. Cell division will happen due to the nucleus only. Nucleus is the storehouse of the genes, the information, hereditary information that is inside the nucleus. Okay, and it transfers the hereditary characters from the parents to the offspring. The nucleus, because of the nucleus only, the characters from the parents come to the offspring. Offspring मतलब जो नई जनरेशन आई है, पेरेंट्स और उनके बच्चे, बच्चे उनके ऑफस्प्रिंग हो गए। ठीक है, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ओके, क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंगली सेल 2 टाइप के होते हैं। अभी हम सिर्फ समझ सकते हैं। नाउ जस्ट सी इट। अभी हमने बात की थी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अच्छी तरह से मेम्ब्रेन है और अच्छी तरह से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, तो इस ऐसी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं या यूकैरियोट बोलते हैं। ओके, द ह्यूमन इज हैविंग अ यूकैरियोटिक सेल। हमारी बॉडी में तो ऐसे सेल हैं, बट यहाँ देखो, द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, कैसा टूटा फूटा सा, फैला हुआ सा, पड़ा हुआ है। सो दिस न्यूक्लियस इज हैविंग द इंफॉर्मेशन, बट ये प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। इसमें इंफॉर्मेशन ज़रूर है, बट ये प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। ये प्रॉपरली बाउंड नहीं है मेम्ब्रेन से। यहाँ पे अच्छी सी एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी जो इसे इकट्ठा करके रख सकती, नहीं है ये सब। सो इस टाइप के, जिस सेल के अंदर इस टाइप का न्यूक्लियस होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है प्रॉपरली, उसे हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते। तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। बात समझ आ रही है? न्यूक्लियस क्या है? जो कि प्रॉपरली एक जगह पे इंटैक्ट है, उसका एक अपना कमरा है, जिस कमरे के अंदर ही वो रहता है, उसकी इंफॉर्मेशन सारी यहीं पे रहेगी, वो इधर उधर फैलेगा नहीं। जबकि
ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर कमरा ही नहीं है न्यूक्लियस के सामान को ढंग से रखने के लिए, सब फैला पड़ा है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम, जिसमें इंफॉर्मेशन तो है बट प्रॉपरली रह ही नहीं रहा, उसे हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो मतलब अगर आप सब अच्छी तरह समझें, सो द प्रोकैरियोटिक सेल हैव nucleoid. It doesn't have a nucleus, it have a nucleoid, and the prokaryotic cell have a nucleus, a proper well defined. Okay, are you getting my point? Okay, so this is the thing. Clear? Okay, so let us talk about it. And one more thing, in the size, ये ज़्यादातर कौन होते हैं, बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरियाज सबसे पहले आए थे अर्थ पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन नहीं पाए, ठीक है, तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ओके, डेवलप नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं साइज में। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल, बहुत छोटा होता है, 10 माइक्रोमीटर। ये साइन देख रहे हैं, ये म्यू होता है, ठीक है, यू जैसा दिख रहा है आपको, बट इसके नीचे ये लंबा सा लाइन है, समथिंग लाइक, ठीक से बना नहीं है, दिस इज a little longer, okay, it is something like u, so this is mu, we call it as mu, ठीक है, micrometer. And whether the eukaryotic cell is a little larger than this, 5 to 10 micrometer. Okay, sorry, it is wrong. It is 50 to 100 micrometer. It is wrong here. Okay, next thing is nuclear membrane is absent. Okay, so nuclear membrane absent in the prokaryotic cell, that's why that nucleus is called as nucleoid. Okay, are you getting my point? And nuclear membrane is present in the eukaryotic cell, that's why it is called as proper nucleus. A single chromosome is present in nucleus, whether here more than one chromosome in the nucleus, or we call it as not nucleus, इसे nucleus ना बोल के nucleoid ही बोल दें, ठीक है, न्यूक्लियोइड हो जाएगा, ये आपका जो ये वाला है इसे यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, देन न्यूक्लियस इज एब्सेंट, हमने बात की थी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, वो ऑर्गेनल जो कि आपका क्या करता है, राइबोसोम्स को बनाता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि इसमें नहीं होता, जबकि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में होता है। ओके, और यहाँ पे जो जैसे कि मैंने बताया था दैट न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस जो है उसका मटेरियल सब कुछ फैला पड़ा है, कोई मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। तो दूसरे ऑर्गेनल भी, बहुत सारे ऑर्गेनल आपके और मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं है, वो भी ऐसे ही फैले पड़े रहते हैं, तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट एंड इन दिस इट इज प्रेजेंट। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस हियर बाय द फिजन और बडिंग। फिजन अमीबा जिससे करता है, टूटता है, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाती है, हमने पढ़ा था इस बारे में, 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है। बडिंग, जब आपका एक ऑर्गेनल है जिसमें से एक बड निकल जाती है, ठीक है, तो ये जो आपके बहुत ही सिंपल आपके ऑर्गेनल्स हैं, उनमें फिजन और बडिंग से ही सेल डिवीजन होता है। Whether in the eukaryotic cell, the cell division takes place by mitosis or meiosis. You will understand it in for your further classes. Mitosis and meiosis are a division of chromosomes, equational division and your reductional division. These are these. We will understand it later on. So this is how the cells are. Okay, cells are according to on the basis of the nucleus. Okay, prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, now coming to the last today's last organelle, that was cytoplasm. Cytoplasm, I have told you, is this the fluid part of the cell which is occurring in the between the plasma membrane and the nucleus. Can you see it here?
this is the plasma membrane, this pink layer, dark pink, and this is the nucleus. In between, whatever fluid is there, this is the cytoplasm. एक नदी की तरह है साइटोप्लाज्म, जिसके ऊपर हर चीज़ और सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? फंक्शन ऑफ इट इज इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया. सीडोपोडिया क्या था? सीडोपोडिया याद है? राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस. अमीबा इज लाइक दिस. ठीक है, ये आपका अमीबा है. ठीक है, इसे चाहिए खाना. ठीक है, और इसको खाना मिल रहा है आगे कहीं, तो ये ऐसा करके हाथ बढ़ाता है, अपना मुंह जैसा बना लेता है एक. ठीक है, इसे सीडोपोडिया बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को, और फिर इस खाने को अंदर ले लेता है. सीडोपोडिया. ओके, सो सीडोपोडिया इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, एंड ऑल दिस specialized organs are present in the cytoplasm. And from one organelle to the other, how the material are going to be exchanged? अब एक फैक्ट्री के अंदर अगर आपका कपड़ा बनाना है, ठीक है, तो एक कुर्ता तैयार करना है. सो कुर्ते के लिए क्या क्या चाहिए आपको? दैट इट नीड्स फर्स्ट ऑफ ऑल cloth will be made in one factory, and then you need thread, then you need a machine for it. The machine will be manufactured in another factory, and the thread is going to manufactured in another factory. वो सब आएगा कैसे उस फैक्ट्री तक जहाँ पे वो कुर्ता बन रहा है? साइटोप्लाज्म के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो ट्रक्स के थ्रू. तो सेल में भी यही होगा. जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी बनाएगा, तो वो आएगी कैसे? जहाँ पे आपका जैसे राइबोसोम प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत है. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी भेजेगा कैसे? साइटोप्लाज्म के थ्रू. ये नदी है जो कि सब हर मटेरियल को दूसरी जगह तक पहुंचाती है. ठीक है, सो दिस इज द साइटोप्लाज्म. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज होल थिंग about this. Now we will talk about the organelles, the main organelles that are present inside the cytoplasm. Okay, so this was it, today's lecture. After this I will provide you the notes. Thank you.